Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. MP Mahadik sir, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे मोस्ट बिलवर्ड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी सेलिब्रेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समापन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर आज के हमारे इस सेशन को होस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से सर का वेलकम करता हूं। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। सर, ओवर टू यू सर। ओके, केस कौन पढ़ेगा? जी बताइए, किसने अच्छे से केस को रीड किया है, समझा है? सर मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ पढ़िए। जी एक मिनट सर। Case. To be or not to be is the only question. Ignatia or Netramore is the only question. This is the case of 60-year female patient suffering from backache and lumbago. Tell me about your problem. Patient. My back got stiff and I cannot sit or stand since last 2-3 days. I cannot cross my legs. In bed also my back is having stitching pain. With the hand gesture, fingers are closing and opening. I need to keep changing position frequently, but lumbar region keeps paining. Massaging heart fomentation release it temporarily. Doctor, did you have fever? Patient, my body is hot, but I feel I had a fever, but my body is always hot. If anyone touches me, finds my body is hot. There is a gap in the lumbar and cervical spine. I get strained due to the grandson, as I had to look after him. I feel exerted. Doctor, tell me about your exertion. Patient, weakness. I'm stressed. Patient is weeping. She lost her husband few months back. Conventionally, we should look of Ignatia, Natramu, Rostock. I cannot bear anything. I'm missing him. He used to take care of me in various ways. I cannot bear. Means I missed him too much. I did not sleep yesterday. I want to go somewhere, leaving everything behind. My vertebrae pain a lot. Better after pressure. I need to little sleep since young age. Husband used to say, you are always wakeful. I get sleep early in the morning, but after alarm, I have to wake up. I have to look after the house, even it is not hectic. I don't know why my back is back pain. At night I want something cold near me, like cold tile or wet covering. But fan does not suits me. Fan causes numbness. Tell me about your sleep. I am very alert in sleep. Slight noise disturbs my sleep. What happens when you go to bed? I don't want to live. I miss him. And again weeping. Tell me about your state frankly. Patient.
My grandson also remembers him on every day. He had secured my future, so no stress on monetary side. He said, don't beg in front of anyone, even the son. The patient, she is the wife of Aramur case I shared few years back. The husband cared me so much that I am indebated. She had got heart attack of hemiplegia 20 years ago. He must have stayed for some more days, as now we are in good position. And again sobbing. I don't want to go to the mall theater. What people will say. We don't understand the price of human till they are living. I had not taken care of him. Do you feel guilty about what patient? He hid his condition from everyone. Then he shared the incidents of her husband. If spoken, we make her address his health issue. Doctor, how life seems to you right now? Patient, meaningless. We nurture kids, that is okay. But he never took any break for himself. Always work, union, pension, etc. He wants food cooked by me only, otherwise he did not eat. Can he die suddenly? She asked me. Then she narrated some incident regarding him. If he had disclosed, his medical aid must have extended his life. Sobbing. Again, tears started flowing from the eyes. I tried to engage in the activity, but still this thought haunts me. I don't complain about other family members. There were a lot of things happened, but I keep mum. Doctor, please elaborate it more. I explained her case-taking process. Patient, nothing, only this pain. Again hiding, and then she described some ancestral property issues. How her husband bared all suffering silently. My husband used to carry all the responsibility in a good manner, but other members do not pay attention. Carry out the job. I am stressed because my son is pure in heart. I feel they would rob him. They used to ask him for higher contribution in the common expenses. Even though he is earning enough, why should he bear a higher contribution? They used to blame my husband for black magic. We had many enemies in Vincity. They are doing it, but still family members used to blame my husband. They used to allege him for every negative things. I know he had been under the spell of evil. He used to listen to them, not ours. In every family function, these people digged out quarrels. They were making mountains out mole. They poisoned ears of my mother-in-law. She did not talk to me for a couple of years. She kept telling various incidents how she and her family was at receiving end in common family affairs. My husband used to suffer every new and full moon. It's all due to the black magic spell. Look, yesterday was full moon and I got backache. Again sobbing. They cannot see well-being of ours. They are jealous of our progress. They used to feed my grandson non-veg on holy days purposely. They are causing trouble intentionally. Again weeping. But still my husband used to love all. She was telling some incident about her husband. Doctor, what dreams do you get? Patient, I feel husband is beside me. I want to cry loudly at night and a weeping. Doctor, how are you feeling now? Patient, calm, much relieved, pain reduced. I lost backbone of my life. This is the sensation of the case and the end of the case. Thank you. Thank you, madam. तो दिस पेशेंट केम, इंग्लिश चलेगा हिंदी में बोलूं?
कौन सी लैंग्वेज में बोलूं मैं, हिंदी या इंग्लिश? सर मुझे लगता है हिंदी में थोड़ा हिंदी बोलिए। सर, हिंदी में सर बोलिए। वैसे हिब्रू भी आती है मुझे, लेकिन चलो हिंदी में बात करता हूँ मैं। तो ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट आया था 7 बजे। जनरली माय क्लिनिक गेट्स क्लोज, यानी मैं 6 साढ़े 6 बजे क्लिनिक बंद कर देता हूँ। तो आई नो द इंसिडेंट, शी वॉज वन ऑफ माई रिलेटिव। तो मैं आते वक्त जिस तरीके से आई, तो हम लोग सोचते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से आइदर नाइट्रमोर देना चाहिए, इग्निशिया देना चाहिए। तो इस तरीके से केस चालू हुआ, और मुझे जस्ट डिफरेंशिएट करना था कि इग्निशिया दूं या नाइट्रमोर दूं, इससे आगे कोई थॉट नहीं था। लेकिन जैसे केस चालू हुआ, एंड द वे शी स्टार्टेड क्राइंग, और उसके बाद जो आगे आप लोगों ने सबने देखा है, सुना है, उस तरीके से केस हुआ है। कि कभी कभी हम लोग भी प्रेजुडाइज होते हैं कि हमको ये रेमेडी देनी चाहिए क्योंकि सिचुएशन वैसी थी उसके लाइफ में। लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंट के साथ समय दे दो या उसके साथ समय गुजारो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ सकती है जिसकी वजह से हमें एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिल सकती है। हालांकि मैं भी उस फिराक में था कि मैं इसको थोड़ा इग्निशिया नेट्रमोर देके या रस्टॉक्स भी देके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे दो, या फिर बाद में बुलाओ, या फिर अगर थोड़ा पेन रिलीफ होता है तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन जैसे शंकरन सर या सुनील आनंद सर कहते कि इफ द पेशेंट इज इन एक्यूट पेन, तो वहां पे बेस्ट चांस रहता है कि आप उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाल सको। बस आपके पास थोड़ा टाइम, धीरज चाहिए। तो मैंने टेस्ट लिया कि सर जो बोलते हैं वो सही में होता है कि नहीं है, और वो हुआ है इस केस में। तो सो दैट्स ऑल अबाउट द केस। अभी आप लोगों को इसमें क्या क्या समझा है, क्या आपको लगता है? और इस केस में फिजिकल पर्टिकुलर, फिजिकल जनरल, मेंटल्स, ऐसी रेमेडी हमें ढूंढनी है जो इस सबको कवर करेगी। मैं किसी चीज को इग्नोर नहीं करूंगा इस केस में, क्योंकि पेशेंट एक्यूट पेन में था, उसको पकड़ के लाया था और चेयर पे बिठाया था। अगर आप कभी वीडियो देखोगे इस केस का, तो आपको समझ में आएगा कि इस हालत में भी पेशेंट का केस लेना या देना, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। और आप लोगों को जो लगता है बोलिए, सुन के आपको क्या लग रहा है, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या लगा इस केस का? सर मैं थोड़ा बोलूं। हाँ बोलिए। सर मुझे इस पार्ट में एक बात ये लगी कि अ, वो बेसिकली हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट टाइप है, और उसके जाने के बाद उसको वो मिस कर रही थी। मतलब उसकी मतलब जो सपोर्ट जो बोलते हैं ना, सपोर्ट टाइप, वो उसको मिस कर रही थी। इसकी वजह से उसको हर चीज के लिए, हर बात के लिए रोना आ रहा है। दूसरा, उसका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि इतनी कंडीशन में भी वो ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशियस वाली बात, बहुत सारी बातें कर रही है। और उसकी जो ये थी मोडेलिटीज, कि मेरा शरीर किसी को भी टच करने के बाद हॉट लगता है, लेकिन मुझे किस किस चीज से, मतलब उसको ठंडी फर्शी से, वेट क्लॉथ से, हार्ट फोमेंटेशन से, मसाज से उसको बेटर रहता है। ये चीजें थी। और उसका ये भी था, बहुत पूछने के बाद, कि ये बताया कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे किस तरह से झगड़ा चल रहा है, और मेरे बेटे को ज्यादा पे करना पड़ता है, वाई ही शुड पे। और दूसरा उसका ये कहना था कि मिस हो गया मेरा। Shit. मुझे मिनरल किंगडम और आर्सेनिक का फील आया। और नहीं तो फिर दूसरा मैं कोई सी एनिमल को सोच सकती हूँ। तो सी एनिमल पे मैं अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही थी, लेकिन फर्स्ट थॉट मेरा मिनरल का और आर्सेनिक का फील आया था। ओके, वेरी गुड। और थैंक यू। कौन बात करना चाहेगा? बहुत सारे लोगों ने केस क्रैक किया है, सो डोंट वरी अबाउट द मेडिसिन।
आर्सेनिक तो नहीं है, किसी ने नहीं बोला, मतलब आर्सेनिक। हम्म क्या बोले आप? आर्सेनिक नहीं है, किसी ने नहीं बोला है। क्रैक करने में आ, आर्सेनिक रेमेडी नहीं आई है। आपने अभी तो बोला ना। हाँ, बस तो हो गया ना। ये अभी तक मैंने कहाँ में रेमेडी का नाम बोला है? सर बोलिए सर। और लोग बोलिए। सर, मैं बोलूँ सर? हाँ बोला, बोला। सर, ये पेशेंट का जो मेन कंप्लेंट ही है कि बैक पूरा स्टीफ हो गया है, बैक पेन है, लंबैगो है। तो एक्चुअल लाइफ में भी ये जो पेशेंट के हस्बैंड थे, यही उनका बैक था। तो वो फिजिकल जो है एस्पेक्ट्स पे सब क्लियर कट दिखाई दे रहा है। बैक चला गया मतलब हस्बैंड चले गए, इसलिए पूरा बैकबोन ही चला गया, वो एक समझा। अभी हस्बैंड, अभी उन्होंने एक पॉइंट ये भी बताया कि 20 years अगो उनको हेमीप्लेजिया हुआ था वाइफ को, और इसीलिए उन्होंने ये भी बोला कि हस्बैंड बहुत केयर करते थे मेरा। तो एक तरीके से ये पेशेंट जो थे वो टाइम पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे उनके हस्बैंड के ऊपर, इसीलिए वो अभी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं अपने हस्बैंड को। उनकी जो लास्ट जितनी भी बातें थी, जैसे आपने उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, पहले तो वो थोड़ा हाइड किया उन्होंने, मतलब वो थोड़ा नहीं बता रहे हैं। उन्होंने बोला है कि नथिंग, कुछ नहीं, थोड़ा छुपा रहे हैं वो छुपाने का एक दिखा, हाइडिंग। उसके बाद उनके जो टॉक टाइम ज्यादा उन्होंने किस चीज पे दिया कि दे दे समवन इज डूइंग समथिंग टू मी, जैसे आपने भी मेंशन किया है। तो एनिमल किंगडम, इसलिए मुझे ये ज्यादा लग रहा है कि वो बोल रहे कि आई नो ही हैड बीन अंडर स्पेल ऑफ इविल। तो सुपर नेचुरल चीजें की बातें यहाँ पे हो रही है। दे पॉइजन माई मदर इन लॉ ईयर्स, किसी ने पॉइजनिंग किया है। माई हस्बैंड यूज टू सफर एवरी न्यू एंड फुल मून, अगेन यहाँ पे सुपरस्टिशियस बातें आ रही है। दे कांट सी वेलबींग ऑफ आवर्स, दे आर जेलस ऑफ आवर प्रोग्रेस। तो यहाँ पे एक जेलसी दिखा, सुपर नेचुरल टॉक दिखा। तो ये जो टॉक टाइम ज्यादा इन्होंने जिस चीज पे दिया है सर, इससे मुझे ये वूम लग रहा है, वूम स्टेज, क्योंकि वो अदर वर्ल्ड की ज्यादा बातें कर रहे हैं ना, इधर उधर की सुपर नेचुरल चीजें, ऐसा। तो इसलिए वूम लगा सर। एनिमल किंगडम क्लियर कट लगा, और हाइडिंग इनका स्ट्रेटेजी लग रहा है एक एक, इसलिए वो मुझे रेप्टाइल्स की तरफ ज्यादा लग रहा है सर। तो मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए, ये मैंने पीएम के हिसाब से इस तरह से सोचा है सर। तो मैंने रूब्रिक्स लिए सर, एक मिनट। सुपरस्टिशियस एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, डिल्यूजन, निग्लेक्टेड ड्यूटी, निग्लेक्टेड ईज, ग्रीफ, हाइडिंग वनसेल्फ, थॉट्स persistent, इग्नेशिया, अर्सेनिक, हेलोबोरस, क्रोटेलस, कैस्केवेला, स्टैफ, नाइट्रोम्यूर, पर्ल्स, लैकेसिस, ओपीएम, ऐसे सब रेमेडीज आते हैं सर। तो मैं क्रोटेलस, कैस्केवेला, डीडी लैकेसिस की तरफ सोच रही हूँ सर, क्योंकि डिलीजन, निग्लेक्टेड इज ड्यूटी, उसने बोला कि आई हैड नॉट टेकन केयर ऑफ हिम, उसमें लैकेसिस एब्सेंट आ रहा है। बट हाँ, मैं लैकेसिस भी सोचूंगी सर, ऐसा थॉट प्रोसेस है सर। वेरी गुड। और कोई बोलना चाहेगा? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर इसमें थोड़ा सा मिक्स पिक्चर लगी। एक बार प्लांट किंगडम का लगा कि इतनी सेंसिटिविटी थी उसके अंदर टुवर्ड्स हर हस्बैंड, फिर बाद में लेकिन वो फिर दूसरी दुनिया की बात कर रही कि सब उसे परेशान कर रहे हैं, उसके हस्बैंड को सबने परेशान किया, मतलब कि सराउंडिंग से सारी उसको इंजरीज मिल रही थी कि वो बार बार उनको परेशान कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा लेकिसिस की तरफ ज्यादा लगा बाद में केस, जिसमें कि जैसे एलमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन लिया मैंने, सुपरस्टिशियस और डिल्यूजन, इंजरीज बीइंग इंजर्ड बाय हिज सराउंडिंग, एंड डिल्यूजन ही वाज परज्यूड, कि मतलब सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो उससे मुझे थोड़ा लेकिसिस की तरफ लगा। ओके, थैंक यू। और कौन बोलेगा? हेलो सर। नमस्ते सर जी। हाँ सर, ये मुझे एनिमल किंगडम का ज्यादा लगा, और स्पाइनलेस रेमेडी यानी स्नेक रेमेडी ज्यादा लगती है, क्योंकि ऐसे बहुत ब्लडेड है, और ज्यादा उसके जो फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स भी स्नेक रेमेडी के ज्यादा लगते हैं, और लेके फिर या क्रोटोलॉजी आएगा। तो मेरा ये मानना है ये रेमेडी के बारे में। ओके, अरे आपका ये प्लेनेटरी चार्ट क्या कहता है? प्लेनेटरी चार्ट में विदाउट यानी बहुत देर कैसे बता, एटलीस्ट
प्लेनेटरी में तो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी में तो चार्ज चाहिए, बाकी ऐसे आया और ऐसे देना है तो चलेगा, आज का दिन ले लो, आज का वार ले लो, ऐसे नहीं चलेगा। ये कौन सा कृष्णमूर्ति पद्धत में लेते हैं ना वैसे क्वेश्चन? नहीं, हाँ वो बहुत सारी है, लेकिन एक प्रफुल्ल विजयकर का स्टूडेंट है, उन्होंने लॉटस थियरी निकाला। तो ये लॉटस थियरी जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रही है, एक्यूट में और सब एक्यूट में। जिस दिन आता है उस दिन की रेमेडी दे दो, मर्फी ओके लॉटस मटेरिया में से जो उसकी रेमेडी है, और एक दो रूब्रिक ले लो और निकाल के दे दो, एटलीस्ट वो एक्यूट फेस चला जाएगा। तो मैंने क्लास लिया था, तो 2-3 प्रैक्टिस में करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये आपके जो मामले होते हैं वो अलग होते थे, इसको कोरिलेट करना डेंजरस थिंग है। नहीं ऐसे नहीं सर, ये प्लानिटरी से जोड़ा हुआ है, देखिए आपको रेमेडी पता चलेगी तो समझिएगा। और कौन बोलेगा? प्लानिटरी में कैसे लूं, क्योंकि मेरे पास इसकी बहुत डिटेल्स, नाम राशि भी पता नहीं है। नहीं नहीं, आप तो उसमें माहिर हो, हम लोग तो अभी क्या है, जस्ट एमेच्योर है, तो आपको मैं उसका संबंध दिखाऊंगा, आप मुझसे बाद में पूछना। ना मैं पूछ लूंगा सर आपको, यस यस। क्योंकि आपके के अंदर मेरा इंटरेस्ट ज्यादा इसलिए रहता है कि डेप्थ वाली रेमेडी होती है, इसलिए मुझे तो आपकी हर एक में आता ही हूँ, क्लास में भी कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी 6 महीने से आपको तो पता है क्या हुआ था, तो वो तो नहीं बताया है ना। यस। और कौन बोलेगा? अरे कितने सारे लोग हैं, कोई बोलो, किसी हेलो को कोई सर। डाउट है और पूछना है? हाँ बोला, बोलिए मैडम। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। सर लकीली मैं अभी कोलियर आपका वीसी स्टार्ट हुआ, तो एक्चुअली केस रीड किया मैंने, डाला सर अपना। तो इन द फर्स्ट उसमें जो फैक्ट लेवल से फीलिंग और डिल्यूजन से जो अपन समझेंगे, तो जो मोडालिटीज आपने डाली है कि नाइट एग्रवेशन और वार्म फील ऑफ द स्किन एंड रिलीव बाय समथिंग आईसी, और फिर उसके बाद फीलिंग्स लेवल पर जो सब है कि सिंस उसको प्रॉब्लम्स भी वैसी है, और वो मोस्ट ऑफ द टॉक फैमिली की भी कर रही है, जहाँ पर उसको रिलेशनशिप से लेके सब इश्यूज है, और पॉइजनिंग की बात है, जेलिसी की बात है, और स्पेशली वो एक बहुत पर्टिकुलर लगा रॉबर्स का जो डिल्यूजन है, इट इज आई थिंक इट इज अ वेरी सेंसेशन पार्ट। और सेकंड, एनिमीज इन द विसिनिटी, जैसे खतरा है बच्चे को अतराफ के, और वो उनको एज ए एनिमीज परसीव कर रही है कि जो नुकसान ही पहुंचाएंगे, और ailments from death of beloved one, still mourning or relieved by weeping, जो लास्ट में उसने बोली कि अब मुझे बहुत काम लग रहा है, तो इवन आई एम गोइंग टू एनिमल किंगडम, ओफिडिया स्नेक। ओके, थैंक यू। और कोई बोलेगा? सर जी ये केस तो सुना है कहाँ ना कहाँ, तो मैं चुप नहीं रहूंगा? नहीं 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 नहीं। नहीं सुना यार, नहीं सुना है, मैंने पब्लिश नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ऑब्वियसली स्नेक लग रहा है, पूरी स्टोरी नहीं सुनी एक्चुअली, मैं सडनली इसमें आ गया, मुझे पता ही नहीं था इधर कुछ है, लेकिन जितनी बात सुनी उससे स्नेक ही लग रहा है सर। थैंक यू। ओके, और कोई बोलेगा? किसी को कुछ कहना है, डाउट है और कुछ पूछना है, इंफॉर्मेशन है? क्योंकि
कि इसमें बहुत सारी चीजें मैंने एडिट की, ऑलमोस्ट 60-70% केस एडिटेड है ये, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ स्टोरीज जो शेयर करने में कुछ मायने नहीं थे। सर लेकिन अगर ये हम्म, मैडम का नाम क्या है? अभी नाम मैडम का नाम इसे रिकॉर्डिंग हो जाती है ना, मैं बाद में बोलता हूँ आपको। राशि का नाम बोल दीजिए, राशि का नाम बोल दीजिए। नहीं, वो तो मुझे थोड़ी ना मालूम होगा। नहीं, आप खाली पहला अक्षर बोल देंगे तो भी चलेगा। अच्छा ठीक है, एस लिख लो। और किसी को कोई पूछना है? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर ये जो पेशेंट है ये एनिमल किंगडम की, क्योंकि इसको यहाँ पे पर्सन से प्रॉब्लम है अपनी फैमिली से, ठीक है, और हस्बैंड के जाने के बाद उसको दिक्कत हुई है। और जो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है इसमें जेलसी और सुपरस्टिशियसनेस तो क्लियर कट है, बट मतलब एनिमल थीम तो इसमें क्लियर है, बट ओफीडिया है कि नहीं है ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। उसका रीजन ये मेरे को दिमाग में दो चीजें आ रही, एक मोलस्क आ रहा है और एक ओफीडिया आ रहा है। जो आपने स्टार्टिंग में ओपनिंग एंड शटिंग जो अपना उसने जो क्या नाम है हैंड जेस्चर जो दिखाया, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग की तरह का था, तो उससे लगता है कि वो मोलस्क की तरफ जा सकती है। लेकिन मोलस्क आर नॉट सो मच जेलस एंड सुपरस्टिशियस एंड, तो ये नहीं। बट ओफीडिया का जो एक लेप्रस फीचर होता है वो भी मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। तो मतलब कोई रेमेडी है जो मोलस्क या ओफीडिया में से कुछ हो, बट ये एनिमल किंगडम है, दैट फॉर श्योर। थैंक और किसी को कोई पूछना है? मेरी आवाज बराबर है? यस अच्छा। सर। हाँ सर। सर वो तांत्रिक का क्या था, तांत्रिक का कुछ बताया ना, उसमें से मुझे लगा कि और पहले किसने थे, क्योंकि वो सेम स्टोरी आई इसमें। हम्म। इसको 20 साल पहले लेफ्ट साइडेड हेमिप्लीजिया हुआ था, एंड शी रिकवर्ड फुली फ्रॉम दैट। एंड उस दरमियान उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने इनकी काफी सेवा की थी, डेली मसाज करना, ये करना, वो करना। तो शी वॉज टेलिंग सम इंसिडेंट्स अबाउट दैट। एंड जो जॉइंट फैमिली थी उसमें उनके हस्बैंड ने हमेशा बहुत हैंडसमली कंट्रीब्यूट करते रहे, हालांकि उनकी उतनी कंडीशन नहीं थी। लेकिन आखिर में जब सब लोग अलग अलग हो गए तो इनके हाथ में कुछ नहीं था, एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर डूइंग वेल। तो ये सब चीजें उन्होंने मुझे बताई। एंड जो फैमिली के जो बिजनेसेस रहते हैं या जो भी प्रॉपर्टीज के इश्यूज रहते हैं, तो इनका ये था कि परसेप्शन था कि माय हस्बैंड इज एट लॉस, कि जो उनका हक का था उन्होंने तो किया, और ऊपर से भाइयों के हक का भी किया, लेकिन भाइयों को उतनी उसकी कदर नहीं है या उनकी उतनी वैल्यू नहीं थी। और जैसे उन्होंने बोला कि मदर इन लॉ 2 साल बात नहीं कर रही थी, तो भाई भी आपस में बात नहीं करते, ऑल दैट इज द फैमिली ड्रामा, उन्होंने बोला। अभी ये जब आई थी तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए थे हस्बैंड गुजर
थे, लेकिन जिस तरीके से उनका ग्रीफ इतना ताजा ताजा था और जिस तरीके से वो रो रही थी, वो काफी डिपेंडेंसी जाहिर, डिपेंडेंट, एक जैसा बच्चा डिपेंड रहता है उस तरीके की डिपेंडेंसी इस केस में है। सेकंड थिंग इसमें जो था कि जो ब्लेम था, अगर हम लोग हस्बैंड की डेथ का जो पार्ट है वो थोड़ा अलग रखे और पूरी केस देखे, तो थ्रू एंड थ्रू बचपन से लेके अभी तक की एज में जो है कि लोग परेशान करते हैं, एनिमिटी है, ब्लैक मैजिक है। तो ये सब चीजें जो है ये हमें एनिमल किंगडम की तरफ लेके जाती है, जिसको हम लोग मी वर्सेस यू बोलते हैं, या विक्टिमाइज फीलिंग है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, वो लोग कर रहे और मैं जवाब नहीं दे सकता। सो ये जो फीलिंग है ये एनिमल किंगडम की फीलिंग लगी। जहाँ पे मैंने कल रात जो केस डाला उसमें 5A जहाँ पे लिखा है वहां पे हमें किंगडम पता चलता है कि ये 5A इट्स एनिमल किंगडम। सेकंड थिंग जो इनकी बातें थी कि रात भर में अलर्ट मोड पे सोती इवन बिफोर द डेथ ऑफ हस्बैंड। सो यहाँ पे वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट बन जाता है कि अलर्ट मोड पे सोना। हस्बैंड जब भी जगते थे बोलते यार तू सोई नहीं, जगी है। और ये कब से हो रहा है? सिंस यंग एज हो रहा है। दूसरी बात जो ये था कि कोई भी मेरे शरीर को छूता है तो मेरा अंग हमेशा उसको गर्म लगता है और मुझे कोल्ड चाहिए, ये बात। तीसरी बात हाइडिंग, हाइडिंग जो था कि उस केस में अगर आप कभी देखो तो उसने कम से कम 10-12 दफा रिक्वेस्ट किया है मुझे कि आप ये बात किसी को बोलना नहीं, ये बात आप किसी को, यानी जो उनके रिलेटिव्स बाहर बैठे थे उनको बोलना नहीं, और छोटे से आवाज में ऐसे ऐसा हुआ है ऐसे करके बात कर रही थी। तो ये जो हाइडिंग नेचर है, ये हाइडिंग नेचर, अलर्टनेस, ये हमें लेके जाते हैं ऑफिडिया पे। और ऑफिडिया ग्रुप में अगर हम लोग फिजिकल पर्टिकुलर की जो मोडलिटी है, एग्रेवेशन इन स्लीप, स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन, फैन ज्यादा स्पीड पे नहीं, छोटा 1 या 2 पे चाहिए लेकिन फर्श ठंडी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ लेफ्ट साइडेड हेमिप्लीजिया, और ये जो स्पेल है एविल का, ये सब चीजों से हम लोग आसानी से लैकेसिस की तरफ आ सकते हैं। केस टेकिंग में मैंने कोई रूब्रिक्स नहीं लिए थे, मैं डायरेक्टली मेडिसिन दिया था या, लेकिन आप लोग रेट्रो में इसके जो भी केस के रिलेटेड जो भी आपको लगते हो रूब्रिक्स वो देख सकते हो, दे आर ऑल मैचिंग। एंड सेकंड थिंग इसमें एक जो बात थी कि जो हम लोग हमेशा क्या रहते कि फुल मून में या न्यू मून को जो मानते हैं उनको सुपरस्टिशियस बोलते हैं। इसके ऊपर मेरा इतना ही है कि फुल मून में देर आर वेरी मच चांसेस कि आप ल्यूनेटिक हो जाओ। ल्यूनेटिक यानी जो मून है अपना, उसके गुरुत्वाकर्षण से हमारे बॉडी में भी कुछ चेंजेस होते हैं, हमारे इमोशंस सर्ज हो जाते हैं। तो इसको अभी सुपरस्टिशियस लेना है या नहीं लेना है ये जिसका उसका कॉल है, लेकिन ये तो बहुत पाया जाता है। इसलिए जो लोग हिस्टोरिकली बिहेव करते हैं उनको ल्यूनेटिक बोलते हैं। तो इट्स अ साइंटिफिक फेनोमेनन। और उनको आने से पहले, जो इस दिन आए थे मेरे पास उसके पहले फुल मून था, तो हो सकता है कि उनकी इमोशंस इतने उभर के आए हो और इसलिए केस उस दिन अच्छा हुआ हो। और इस सब चीजों को लेके मैंने उनको लैकेसिस दिया, शी was better, right now she is not on the treatment। और जहाँ पे इन्होंने सोर्स की बात की कि पॉइजनिंग ईयर ऑफ माई मदर इन लॉ, एक था। अभी हम लोग अगर आराम से सोचेंगे तो वाई शुड नॉट बाम्बूसा या ऐसी कुछ जो स्पाइन वाली रेमेडीज है, काली कार्ब है, ऐसे क्यों नहीं था? तो बिकॉज किंगडम वहां पे मैच नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं दिया है। ये जो एक्यूट एपिसोड था वो अगर हम लोग हटा भी दे
तो भी वो बचपन से लेके लैक्टेसिस में ही थी और आज भी लैक्टेसिस में ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इस तरीके से कि कोई एपिसोड भी आता है तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ के आती है, सर्ज हो जाती है। तो एक्यूट में देर इज बहुत अच्छा चांस रहता है कि आप किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बहुत जल्दी निकाल सकते हो। और परसों गौतम दवे सर, परसों नागपंचमी हुई है, सो दैट वाज द आई वांट टू टेल यू यस यस तो इसके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर ही सकते हैं। और किसी को कोई सवाल पूछने तो पूछिए। सर कुछ बोलूं? हाँ सर आपने पहली बार डाला है तो मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जो इतना बोले लास्ट तक वो सब मेरे, मुझे ऐसा लगता है सब रिपीट हो रहा है। मतलब या तो जब में मेरी तो निकल पड़ी सर फिर। इसलिए हो रहा है क्योंकि स्नेक में क्लियरेंस रहता है ना सर। हाँ वो है, मैं लकेश में 10 साल रहा हूँ तो अच्छी बात है सर, लेकिन आप जो लास्ट तक जो समझाए ना, अच्छा लगता है सब आप बोल चुके हैं पहले। हाँ, आपने रेमेडी प्रूव लकेश कर ले रहे हो लूं? अभी। मैं लकेश ले लूं क्या? और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर थैंक यू। हाँ हाँ सर सर मैं इसमें ओल्ड एज समझने की कोशिश कर रही थी, तो उस पे थोड़ा बताइए ना प्लीज। ओल्ड एज जो पीएम के हिसाब से यहाँ पे आता है ना कि उसको अभी इस दुनिया से जाना है। जो उसने बोला कि मुझे फिक्र अभी मेरे बेटी की, अदरवाइज मुझे डेट पे आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हस्बैंड तो नहीं रहे और मैं भी नहीं रहूंगी, तो मेरे बेटे के ये लोग रॉब कर लेंगे। सेकेंड थिंग यहाँ पे आती है कि ओल्ड एज इसलिए बोला जाता है ऑफिडिया को क्योंकि बाकी जो इस क्लास में जो भी क्रोकोडाइल्स है, एलिगेटर्स है या जो भी एनिमल्स है, दे कैन मूव, लेकिन इनके पास पैर नहीं रहते, सो दे आर ऑलवेज एट ए डिसएडवांटेज। और जब भी कभी फाइट होती है या 1-to-1 जहां पे इनकी किलिंग होती है, वहां पे इनको एक डिसएडवांटेज रहता है कि ये भाग नहीं सकते, इसलिए इनका हमेशा एक रहता है कि छुप के रहो, एम्ब्यूश में रहो कि आप किसी को दिखे ना। तो इमोशंस भी उन्होंने ऐसे रखे थे कि किसी को दिखाई नहीं पड़े, इतने सालों से छुपा के रखे थे, किसी के साथ खुल के बात नहीं कर सकते हैं या हमेशा बात उल्टी करेंगे। तो ये सब चीजें जो है ना वो ओल्ड एज को तरफ लेके जाती है कि अभी जो है सो है, वी कैनॉट चेंज इट। जैसे वो एक आदमी, अगर मैं जवान हूं तो मैं बुढ़े आदमी का रोल कर सकता हूँ, जैसे सारांश में अनुपम खेर साहब ने किया था, लेकिन कोई बुढ़ा आदमी हीरो का रोल कर सकता है क्या, एक्सेप्ट रजनीकांत? तो ये इरिवर्सिबल है कोई चीजें। मुझे पैर नहीं है तो नहीं है, मुझे क्रॉलिंग करके ही जाना है। तो ये चीजें ओल्ड एज की तरफ लेके जाती है ऑफिडिया को। सेकंड थिंग इनमें ये रहता है कि मारना भी नहीं चाहते, इट्स ए लिथल स्नेक नॉट ड्यू टू द वेनिमिटी। इनकी जो अमाउंट है वेनम इंजेक्ट करने की बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए वो जो भी विक्टिम है वो डाई करता है, मर जाता है। लेकिन जितना हो सके उतना स्नेक बचते हैं काटने से, जितना हो सके वो दे रिवर्स बैक, छिप जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन अगर आप उनके पीछे ही लगो तो उनके पास कोई चारा नहीं रहता, देन दे हिस, अदरवाइज दे डोंट। पर्टिकुलरली ये प्रोटेलिडी फैमिली का जो है उस पर बात कर रहा हूँ मैं। और इनको ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बहुत ज्यादा रहते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इसलिए ज्यादा रहती है कि बिकॉज दे आर वेरी एंशियस। अरे जो एंजाइटी है कि कहीं ना कोई कोई आ गया, कोई पंछी आ गया, पंछी को तो ऊपर से स्नेक दिखता है लेकिन स्नेक को पंछी दिखेगा क्या? तो कितना अलर्ट मोड रहेगा, कितना एंजाइटी रहेगी, कितना एंशियस मोड रहेगा, ये आप देख लेना। कभी खुद को उस रूप में ढाल के देखो
कि हाथ पैर नहीं है और अपने आप को बचाना है। कोई भी आपको, यानी ह्यूमंस आर द बिग एग्रेसर्स फॉर स्नेक्स, लेकिन फिर भी मुंगूस है, बर्ड्स है, सो व्हेन दे सी द नेचर दे फील वी आर एट डिसएडवांटेज। इन सबको कुछ ना कुछ अच्छा मिला है, और हमें जो पॉइजन मिला वो भी हर किसी को इंजेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज योर फॉर इंजेक्शन ऑफ पॉइजन यू शुड बी इन अ सर्टेन एंगल। सर वो अगर सब आप समझा एक्सप्लेनेशन, लेकिन केस में ओल्ड एज का क्या था वो नहीं समझ में आ रहा अभी भी सर। ओल्ड एज में इरिवर्सिबल है ये, पैर नहीं है तो नहीं आएंगे आपको कभी पैर, आपको क्रॉल ही करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हो। इसको ये सिचुएशन फेस अभी करनी ही है ऐसा सर, ये केस में लेडी नहीं को। प्रॉपर स्नेक में ऐसे रहता है कि जो मिला उतना ही है, इट इज वेरी लिमिटेड, औरों को बहुत ज्यादा मिला है, मुझे कम है मेरे पास अभी, दैट इज ओल्ड एज। सर यहाँ पर हाथ वो जेस्चर का क्या रोल है? नहीं जेस्चर उन्होंने किया था, लेकिन मैंने बाद में प्रोब नहीं किया है क्योंकि वो रिपीट नहीं हुआ उसके बाद, ओके क्योंकि रो रहे थे तो रुमाल था, नैपकिन था, पेपर नैपकिन दे रहा था मैं, तो हैंड जेस्चर आया नहीं बाद में केस में। ओके ओके। ना ही मैंने उनको वुमन वन दिखाई है, क्योंकि बाकी केसेस काफी क्लियर हो गई थी। आप बोरिक में से लैक्टेसिस पढ़ो, इंट्रोडक्शन पढ़ो, माइंड पढ़ो, बैक पढ़ो, इट इज मच मोर मैचिंग विद द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। सर फायर एलिमेंट कैसे समझेंगे सर? फायर एलिमेंट अभी फायर एलिमेंट में आपको पीएम के क्लास में बोल दूंगा, यहाँ पे बाकी ओके लोगों को बहुत सर। कुछ मालूम हाँ नहीं है, तो बीसी अलग तरीके से जाती है। ठीक है। मैंने जो वो कोरिलेट किया सर, वो वूम स्टेज था ना, करेक्ट? वूम से यानी कॉलम उसका वूम है, वूम से बाहर आना चाहती है, दैट इज कॉलम नहीं 2। मतलब मैंने जो उसका रीजनिंग दिया सर, क्या वो होता है हाँ जस्टिफाई? होता है ना, डिपेंडेंसी होता है ना? कितनी है, डिपेंडेंसी जो बच्चा बाहर आता है उसकी डिपेंडेंसी कितनी रहेगी माँ के ऊपर। और ये भी ना सर कि इविल आई है वो सब, मतलब सुपर नेचुरल चीजें की बातें करना है ना, तो अदर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, इसीलिए भी वो सोच सकते हैं ना? इसलिए वूम नहीं नहीं। सोच सकते, ये आपको सब किंगडम का सब किंगडम देगा, टोटलिटी फैमिली देगा ये। अच्छा हाँ, वो पढ़ा था उसमें मैंने, वो तीस डिल्यूजन घोस्ट वो सब था क्रोटेरस कैस्केला में। हाँ, प्रोक्लेस कैस्केल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी ऑफ लैक्टेसिस, बोरिक में दिया है। ओके ठीक है सर। दोनों के सिम्टम ऑलमोस्ट सेम है सर। हाँ दोनों के सिम्टम सेम ऑलमोस्ट सेम है, बहुत माइनर फेर है। अगर सिंपल अगर आप सोचोगे राइट साइड रहेगी तो क्रोटेलिस दे दिया करो, लेफ्ट साइड रहेगी तो लैक्टेसिस दिया करो। और दोनों हीमोटॉक्सिन्स है ये, क्रोटेलिस कैस्केविला, क्रोटेलिस हॉरिडस, लैक्टेसिस हीमोटॉक्सिन्स, यानी खून जम जाता है इनके काटने से। और उस टाइम पे हेमिप्लेजिया में एक्चुअली क्या हुआ था आई डोंट नो, उस टाइम के रिपोर्ट्स मैंने पूछे नहीं, मुझे मालूम नहीं है, शायद ऐसी कुछ पैथोलॉजी वहां पे भी रही होगी। उन्होंने जो बोला था कि मैं सबके सामने रो नहीं सकती, कि मैं रोऊंगी तो मेरा बेटा रोएगा, फिर मेरी ग्रैंडसन रोएगा, इसलिए मैं छुपा के रखती हूँ। छुपाना ये एक जो है एटीट्यूड, वो थ्रू एंड थ्रू केस में था। नॉर्मल लाइफ में स्नेक्स छुपते हैं हमेशा। और जो न्यूरोसिफिलिटिक जो प्रियंका मैडम बोल रही थी, लेप्रोसिफिलिटिक आता है क्योंकि दे कैन नॉट मिक्स विद द सोसाइटी। अगर स्नेक आपको दिखे तो फौरन आपकी रिएक्शन क्या रहेगी, तो पहले भागो, लंबे से देखो कहाँ पे जा रहा है, फिर लोग इकट्ठा करो और पत्थर डालो। उसकी वजह से वो लेप्रोसिफिलिटिक अप्रोच आता है। लेकिन नॉर्मल सी में उनका एम्बुश यानी हाइडिंग,
छुप के रहते। और किसी को कोई सवाल है? हेलो सर। पोटेंसी पोटेंसी इनको मैंने दिया था पे LM 0/3, फिर 6 किया नेक्स्ट मंथ एंड शी सेटल्ड इन 3 मंथ। ओके सर। एक्यूट पेन जब था तब 15-15 मिनट से चल रही थी दवा। रात को फिर मैंने उनको बोला 11 बजे बंद कर दीजिए, यू कैन स्टार्ट मॉर्निंग फ्रॉम 5 AM। तो सेकंड डे इवनिंग तक उनका पेन 60-70% बेटर था। फिर दिन में 3 दफा। सर एक बात पूछनी थी सर। प्रणाम सर। बोलिए सर रिगार्डिंग पोटेंसी की पूछनी थी। जैसे आपने LM 0103 दिया, उसके बाद में 0/6 दे दिया है ना सर। तो इसके लिए कितने सारे कॉन्ट्रोवर्सीज है कि अगर मान लो कि हम या तो हम एक के बाद एक पोटेंसी देते हैं, LM 1 दिया 2 दिया, या मतलब कि हम ऑल्टरनेटिव पोटेंसी देते हैं जिसको जंपिंग पोटेंसी बोलते हैं। अब LM 3 से LM 6 का इतना बड़ा ये प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दो मुझे जरा सा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी आपको ऐसे लगता है, या क्यों नहीं करना चाहिए आपको? नहीं सर, मेरे को यही ना, मतलब कि बहुत बार ये दुविधा में पड़ जाते हैं कि 3 से 6 और कितनी बार डायरेक्ट 6 को लेते हैं। अगर सर संकरन सर का चार्ट देखा था, उसमें कहा था कि अगर मैंने 1M पोटेंसी लेनी है तो हम 6 ले सकते हैं, 0/6 है ना, 0/5 ले सकते हैं। लेकिन नहीं यहाँ पे 7-8 1M के लिए 7-8 है मैडम। अच्छा 200 के लिए 5-6 है फिर। हाँ, तो अभी यहाँ पे पेशेंट का जो था ना, फैट लेवल पे था, हाँ। फिजिकल पर्टिकुलर कंप्लेंट बहुत ज्यादा थी, शी वॉज इन एक्यूट पेन, तो इसलिए मैंने 3/4 में 3 दे दिया। ओके। उसके बाद में फिर सर 6 दे दिया, मतलब आपने 1M में जाना था तो आपने 6 दे दिया, यही किया कि या और भी कोई रीजन है? नहीं, थोड़ा अगर पेशेंट जब फिजिकल पर्टिकुलर चीजें कम होती है तो जनरल लेवल पे सुधार आना चाहिए उनकी थिंकिंग में, मेंटेलिटी में। अदरवाइज क्या होगा, ये पेशेंट फिर और कोई बीमारी लेके आएगा 1-1.5 साल के बाद, तो वो नहीं आना चाहिए। इसलिए वंस एंड ऑल क्लियर करके, जब आपको लगे कि उनकी जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन बन गई है, नॉन ह्यूमन लैंग्वेज कम हुई। नॉन ह्यूमन लैंग्वेज यानी क्या है यहाँ पे? सर दैट इज अदर सॉन्ग ओनली ना व्हिच यू हाँ, आर तो अदर टॉकिंग, है सॉन्ग ना। जैसे जैसे डायल्यूट होते जाएगा वैसे वैसे आप दवाई कम कर सकते हो, रिपीटेशन कम होता है। एंड सम फाइंड दैट पेशेंट इज रिकवर्ड 100%। वो सर फिर सर कोई और चीज 0/3 की फिर बात करनी। सर 0/3 कब तक चलाई फिर आपने? 0/3 चला मैंने 1.5 महीना, 0/6 1.5 महीना। सर 0/3 जब 1.5 महीना कंटिन्यूसली चल रही है तो वो कैसे आपने चलाई, एक बार बता दीजिए प्लीज। एवरी टाइम यू हैव टू गिव 10 स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स में पेशेंट को बोलता लिख के रखो, जब नई बोतल बनेगी तब मैं क्लिनिक से पहले वाले जितने भी स्ट्रोक्स बने वो एक्स्ट्रा 10 स्ट्रोक बना के दवा देता हूँ। तो धीरे धीरे 0/3 की जो पोटेंसी है बढ़ बढ़ के ऑलमोस्ट 5 पे तक पहुंच ही जाती है 1-1.5 महीने में, इसलिए मैं 6 देता हूँ उसके बाद। सर तो जैसे कहा गया है ना कि हम अगर 100 ml की शीशी में अगर दवाई बनाते हैं LM पोटेंसी की, तो उसको 10 स्ट्रोक्स देना अगर देते हैं तो हमारा 100 स्ट्रोक से नीचे आना चाहिए एक बॉटल फिनिश करने के लिए, है ना। उसके बाद में वो नेक्स्ट पोटेंसी में जंप हो जाती है, मतलब कि उसका मतलब कि इंक्रीज होता है। अगर हम Yes. एक ही बॉटल को बार बार अगर कंटिन्यूसली 1.5 महीना हिलाते हैं तो वो तो फिर काफी ज्यादा उसमें चेंजेस आ जाती है ना। नहीं, मैं एक ही बोतल देता, हर दफा नया बोतल करके देता हूँ। मैं वही बोला कि नहीं, पेशेंट्स हर को मैंने, वीकली चेंज करते हैं सर आप? हाँ, मैं 15 डेज की मेडिसिन दिया था इनको, तो हाँ। स्ट्रोक्स वो बोल के रखते 200 300। अभी एक केस है, कभी शेयर करूंगा, तो वहां पे नाउ उनके एक एक बोतल को 2-2 हजार स्ट्रोक हो गए थे। वो मैंने बनाया था 5 लीटर की बोतल में, बिकॉज शी हैज दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। बाकी लोगों ने तो केस देखा है वो
अभी वो फिलहाल वो 0/12 ले रहे, और वहां पे पोटेंशियल मैंने 0/1 से चालू किया था। अभी कम से कम 1.5 साल होने को आया है उस केस को, 1.5 या 2 साल हुए हैं। तो वहां पे LM 1/2 3 ऐसे ही चला है, और अभी जब लास्ट वाला 0/11 था उसको कम से कम उन्होंने 2000 स्ट्रोक दिए थे। सर ये चैप्टर बहुत दुविधा वाला चैप्टर है सर। मतलब जैसे मतलब कि हम लोगों ने मतलब जहां से मैंने पढ़ा था सर, वहां पे बोला था अगर मान लो कि हमने बॉटल चेंज करनी है तो अगर हमारे 100 स्ट्रोक से कम आने चाहिए तो आपको 6 भी दे सकते हो, 8 स्ट्रोक्स भी दे सकते हो, 10 स्ट्रोक्स भी दे। 10 स्ट्रोक दोगे तो उसके उतने आपको मैनेज करने हैं कि वो 10 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। देखिए क्या है, पोस्टोलॉजी इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इन होम्योपैथी। आपको पहले कुछ पेशेंट्स को देख के उसका रिजल्ट देखना पड़ेगा, फिर आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर अपने आप की खुद की स्टाइल भी डेवलप हो जाती है ना प्रिस्क्रिप्शन में। सर एक अभी रिक्वेस्ट है सर, अगर आपके पास में कभी भी वक्त हुआ तो प्लीज एक बार पोस्टोलॉजी के ऊपर में आप सर समझा दोगे, जैसे स्पेशली एलएम पोटेंसी। हाँ बोल दूंगा, आप बोल दीजिए प्रवीण सर को। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कोई सवाल है? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बोला मैडम, इट्स ऑल शी इज टॉकिंग ऑल अबाउट एग्स, सो लैकेसिस निकाला आपने। नहीं नहीं योर नहीं सर, चैप्टर मैंने आप पहले और एड्रेस करके रखा था, बाद में मैं भूल गई, ऐसा हुआ तो। और बाद में वो मैच हो गया उससे, आपने मैंने उसको कोरिलेट किया, ऐसा किया है तो। आप कहाँ से हो मैडम? चंदगड, कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट, वय बेलगाम के किती पास है तुमचं हमारा आता? गाँव। वय किती आहे तुमचं? वय किती आहे? 47 आहे। अरे नाही तर मी तुम्हाला म्हणलं असते MPSC UPSC द्या म्हणून. नहीं नहीं सर, तुमचं कसं झालं, हाँ मैंने क्या सोचा, लैकेसिस हम रात को 2-3 मेंबर हम डिस्कस कर रहे थे केस को, तो लैकेसिस, लेकिन वो ओपन शटिंग और वो क्लोजिंग हैंड का वो गेस्चर आपके वो केस में ऐसा रहता है कि वो गेस्चर में ज्यादा ये करते हैं आप, तो इस टाइम आपने वो गेस्चर का वीडियो नहीं डाला, लेकिन हम वो लैकेसिस कैसा कर सकता है ओपन क्लोजिंग, ऐसा ऐसा हम सोच रहे थे। बाद में तो मैंने वो लिख के रखा था लैकेसिस का वो रेपटाइज करके, तो बाद में आपने जब वो क्लू दिया तो वो मैं कंफर्म डाली उसमें, ऐसा किया। तो मुझे पता आपसे पूछना है कि 5 ये तो किंगडम है, 5 भी सब किंगडम है, और 5C का क्या है ऐसा? 5C यानी प्रॉपर सब्सटेंस। अभी कौन सा स्नेक देना चाहिए? लैकेसिस है, क्रोटलिस कैस्केविला है, क्रोटलिस हॉरिडेस है, वाइपेरा है, नाजा है, बॉय कॉन्स्ट्रिक्टर है, पाइथन है, ब्लैक मम्बा है, इनमें से कौन सा देना चाहिए? हाँ, जो कौन सा देना है वो सब्सटेंस है, वो हाँ, वो 5C है। और और ये क्या इन सब में सबसे बड़ी जेलिसी लैकेसिस में होती है, ऐसा मट्रेमेडिका के हिसाब से है। द मोस्ट जेलस स्नेक इन आवर मट्रेमेडिका इज लैकेसिस, इसलिए लैकेसिस दे दिया। एंड ऑल अदर फिजिकल पर्टिकुलर आर आल्सो मैचिंग। बोला मैडम। बीच में आपने वो 4A 5A ऐसा लिखा है, वो क्या है? 4A यानी प्राइमरी डिल्यूजन, 4B is a qualified delusion, and 4C is very peculiar or peculiar delusion. सर ये आपके वो सेंसेशन मेथड के थ्रू जाना होगा हमें, तो समझ में आएगा। ऐसा है, ओके सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया केस था। थैंक यू। हेलो सर। हाँ नमस्ते मैडम, तुम ही क्रैक की केस, आपने भी केस क्रैक किया। मेरा पहला केस भी आपने बहुत 1.5 साल 2.5 साल हो गए क्रैक किया था। सर थैंक यू सर, मुझे याद नहीं मिले, बट इट्स रियली ग्रेटनेस कि आपने है ना याद रखा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली पहले मुझे लैकेसिस लगा था, लेकिन एक क्वेश्चन था एज पर माइंड मेथड, क्योंकि लैकेसिस डजंट केयर कि है ना व्हाट अदर्स से, तो उसकी वजह से मैं नाजा पे चली गई थी। तो और दूसरा था कि वो ड्यूटी की भी बात कर रही थी कि
मैंने ऐसे किया नहीं था समथिंग, तो इसकी वजह से मैं एलेक्सिस सोचते से नाजा पे चली गई थी। तो वहां पर सर प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। उनका कहना था अगर हस्बैंड ने मुझे बोला होता, यानी उनको ही नहीं मुझे भी, आई वॉज द विटनेस ऑफ एवरीथिंग, तो हर कोई कुछ ना कुछ कर ही सकता था ना। बिकॉज फ्रॉम द मंडे ही इज हैविंग 650 शुगर, फ्रॉम द मंडे ही वॉज हैविंग चेस्ट पेन एंड एंजाइना। और वो मैं गया था, मैंने उनके साथ मंडे को भी बात की, हम लोग बात कर रहे थे दोनों। उन्होंने उस टाइम पे भी मुझे कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने फिर मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे तक, और थर्सडे रात को 12:30-1 बजे दे रश टू द हॉस्पिटल। अगर 4 दिन में अगर उन्होंने बोला रहते कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है या मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इट्स वेरी क्वाइट नेचुरल ना कि हम कोई भी आदमी या घर का कोई सदस्य, चाहे जितनी एनिमिटी हो, हॉस्पिटल तो लेके ही जाता था ना। और उनका अगर टाइम पे अगर ट्रीटमेंट मिलती थी तो हो सकता था देयर विल बी द अनदर पिक्चर। तो इसलिए उनको ऐसे लगता है, उन्होंने ये नहीं, गिल्ट नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं है। उन्होंने अगर बोला रहता तो बहुत कुछ करने को था, सबके हाथ में था, ना ही बल्कि उनके हाथ में, सबके हाथ में था। वो उनका वो कहना है। बहुत सारे लोगों ने उनको ये नहीं लिया कि उनको करने को था। ड्यूटी जो निग्लेक्टेड है ना, कि मुझे मालूम है कि मुझे ये करना है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, दैट इज ड्यूटी निग्लेक्टेड, ऐसा मुझे लगता है। मैं काफी परिचित नहीं हूँ रूब्रिक्स और रेफरेंस से, दैट इज माय फ्लॉ इन माय प्रैक्टिस। लेकिन निग्लेक्टेड ड्यूटी यानी हमको मालूम है कि इस टाइम पे ये करना है और वो मैं नहीं कर रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, तो निग्लेक्टेड आएगा। समझो अगर आज वीसी 3 बजे है और मुझे मालूम है, लेकिन मैं जानबूझ के 3:15 पर आए, जाने दो, देखेंगे, चालू करने दो, क्या होता है, तो ये निग्लेक्टेड ड्यूटी है। लेकिन मुझे मालूम ही नहीं कि मेरी वीसी 3 बजे है, तो निग्लेक्टेड कहां से आया? ऐसा ऐसा इस तरीके का उस केस में फील था कि मालूम ही नहीं है ना। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत सारी दफा क्या होता है कि जो राइटअप है, राइटअप में आपको वो फील नहीं आता या नहीं आएगा जो वीडियो देख के या इन पर्सन आप जब प्रेजेंट रहोगे केबिन में तो आएगा। इसलिए अभी परवीन सर है, जायसवाल सर है, ज्ञानी सर है, महाडिक सर है, हम लोगों ने ये तय किया कि कुछ आपके लिए वीडियो केसेस हमको दिखाने हैं, जिसकी वजह से जो हम लोग केबिन में बैठ के फील करते हैं वही सारी चीजें आप भी फील कर लो। और राइटअप और वीडियो में काफी अंतर रहता है। तो इसलिए हम लोग अभी 4 अक्टूबर को एक छोटा 1 दिन का सेमिनार रख रहे हैं, 1.5 दिन का। अगर आप सब लोग आएंगे तो सबसे मुलाकात होगी, सबसे हम लोग रूबरू जानेंगे। उसमें एंटरटेनमेंट है, लर्निंग है, हम लोग वीडियो केसेस दिखाएंगे वहां पे, क्योंकि टेलीग्राम पे वीडियो केस डालना बहुत रिस्की होता है मेडिको लीगली। तो अगर आप सब लोग आओगे वहां पे तो एक अच्छा बॉन्डिंग होगा, अच्छा सब लोगों को सीखने को मिलेगा, एक दूसरे से अच्छी पहचान होगी, वी कैन ग्रो एज ए फैमिली। क्योंकि अभी तो ये ऑनलाइन का जमाना आ गया, लेकिन जब, यानी मैं अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन उस जमाने में हम लोग मुंबई जाया करते थे या दिल्ली जाया करते थे या कलकत्ता जाया करते थे फिजिकली, तो इतना भी वो काम ऑनलाइन से नहीं हो रहा, दैट इज गुड। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऑफलाइन अगर आप लोग देखोगे, स्पेसिफिकली अगर आप ये जो केसेस है, एक पेशेंट का ये रूब्रिक क्यों लिया, कहीं क्यों पकड़ा, उसके पीछे का रीजन जब आप आंखों से देखोगे तो योर अंडरस्टैंडिंग विल बी 20 टाइम्स मोर देन जस्ट सीइंग द राइटर। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सब आइए उस सेमिनार में, 1 दिन के सेमिनार में, और अच्छी खासी लर्निंग कीजिए। और बहुत कुछ अच्छा वहाँ पे जायसवाल सर है, जानी सर है, महाडिक सर है, मनीषा मैडम है, इनसे आप सीखिए और अपने क्वेश्चंस पूछिए उनसे, आपकी डिफिकल्टी पूछिए,
आमतौर पे वीसी पे ये सब बातें नहीं हो सकती, या कुछ पर्सनल डिफिकल्टीज भी होती है, तो आप वहां पे आके पूछ सकते हो। बिल्कुल सर। बताइए कौन कौन आ रहा है अपने 4 और 5 अक्टूबर। एक बहुत बढ़िया हम सबके लिए एक्सपीरियंस रहने वाला है, लर्निंग रहने वाली है। एक मतलब कुछ आप लेके आएंगे बहुत कुछ, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ। और हम सभी मेंटर्स लगे हुए हैं उसमें कि उस लेवल का वो हमारा सेमिनार हो, हमारा वो इवेंट उस लेवल का हो कि आप लोगों को मतलब एक होता है ना कि गूज बम्प्स के साथ हम आते हैं, वो एक इम्प्रेशन कैरी करते हैं उसके बाद, और फिर वो हमारी प्रैक्टिस में भी रिफ्लेक्ट होता है। और वहां पे इतने 5-6 मेंटर्स लोग रहेंगे, तो आपको हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और ज्ञान तो ऐसा भंडार है कि सब लोग ओपन करके रखते हैं, आपको जितना लूटना है लूटिए। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जी सर। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग सेमिनार, रिगार्डिंग रेमेडी, रिगार्डिंग केस टेकिंग? और वहां पे आपको मैं दिखाऊंगा कि केस कैसे होती है। एक्चुअली वीडियो केसेस जो बाकी लोग जो मेरे पीएम के ग्रुप में हो तो काफी देखते हैं, वहां पे हम लोग हफ्ते में 2 या 3 लाइव केसेस भी लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने अभी तक सिर्फ राइटअप पढ़े, तो लाइव केस एक्चुअली कैसे होती है, या आपको वीडियो पे केस जो रेमेडी आती है किस तरीके से आती है, हैंड जेस्चर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, वुमन वन के बाद पेशेंट कैसे बोलता है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, उसकी एनर्जी कैसी होती है, ये सब चीजें आपको राइटअप में दिखाना बहुत मुश्किल है सभी मेंटर्स के लिए। तो आप आइए वहां पे और देखिए व्हाट चेंजेस इट ब्रिंग्स इन यू। जी सर। जी ऐड कीजिए प्लीज। कोई किसी का क्वेरी है, जो भी आप जानना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो बताइए। हेलो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नो क्वेरीज सर। जी सर। तो हम लोग तो एंड कर ले अभी वीसी, या यस किसी सर। को कोई सवाल है तो पूछ लेना, या अगर बाद में आता है तो ग्रुप में डाल दीजिए या पर्सनल पे पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। जी सर। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बहुत ही बढ़िया केस था सर, और जिस तरह से हमारे मेंबर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं कि 5C क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो जब आपने स्टार्टिंग किया था वहां से लेके आज तक का जो हमारा ये जर्नी रहा है सर, मैं बोल सकता हूँ कि अभी ढेर सारे ऐसे मेंबर्स हैं कि उनको कुछ कुछ चीजें समझ आने लगी हैं, उनको इंटरेस्ट आने लगा है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होम्योपैथी जो है वो बियॉन्ड मेथड्स है। मेथड्स हम हमारी सुविधा के लिए यूज करते हैं, जो हमको लगता है कि हम इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कैनवस है। और होम्योपैथी की वो जो विशालता है, उसको जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, जैसे जैसे हमको एहसास होता जाता है कि नहीं, हमको बहुत कम आता है, अभी तो और पढ़ना है, अभी तो और पढ़ना है,
अभी तो और सीखना है। तो आप बहुत अच्छा सभी ग्रो कर रहे हैं, इसको और जितना आप फास्ट कर सकते हैं अपने पेस को प्लीज कीजिए। और फिर फ्यूचर में आप सभी के केसेस भी हमको पर्सनल इवोल्यूशन मॉडल और सेंसेशन मेथड के हिसाब से देखने को मिलेंगे। एक से एक रेयर रेमेडीज के केसेस भी देखने को मिलेंगे। ऐसी भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ। मैंने जब पहला केस डाला था IHF में, तो प्रवीण सर का मुझे 4:30 बजे फोन आया था, सर केस तो डाला है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। मैंने उनको बोला था थोड़ा समय जाने दो, लोग समझ जाएंगे। और देखिए सिस्टम अलग अलग है, लेकिन केस टेकिंग चलो ये सिस्टम से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन आपने जब केस पढ़ा है आप माइंड सिस्टम से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई क्लासिकल से इसको सॉल्व कर सकता है। तो मेन क्रक्स क्या है कि केस कैसे लिया जाए। अगर आपने केस अच्छे से लिया है तो देखने के एंगल हर किसी का अलग रहेगा, बिकॉज हमारी पर्सनल एक कैपेसिटी भी है, हमारा एक पर्सनल ऑरा भी है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से केस ले सकते हो तो चाहे जो सिस्टम से सॉल्व करो। केस लैक केसेस आज कितने लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला है। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि पर्सनल इवोल्यूशन मॉडल जिनको आता है वही लैक केसेस बोलेंगे, बाकी लोग लैक केसेस नहीं बोल सकते, या जो सिर्फ मटर मेडिकल से प्रैक्टिस करते हैं वो लोग बोलेंगे। आप रेपर्टरी से भी लैक केसेस तक आ सकते हो, हर चीज से आ सकते हो। द क्रक्स इज दैट कि आपको केस अच्छे से लेना आना चाहिए। आप अगर अच्छे से केस लो, आप चाहे जो सिस्टम से प्रैक्टिस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड सो वंडरफुल एक्सपीरियंस। और हम लोग मिलेंगे 4 अक्टूबर को। सो लेट्स हैव फन एंड ब्लास्ट ओवर देयर। थैंक यू, गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू सर। तो मिलते हैं सभी 4 और 5 अक्टूबर को पुणे में। और यही हम ये जो केस टेकिंग के बारे में सर बता रहे हैं, यही प्रोसेस जो है कि ठीक तरह से केस टेकिंग कैसे करना है, पेशेंट को कैसे समझना है, उसकी मॉर्बिडिटी को कैसे समझना है, यही हम सीखेंगे। और अलग अलग हमारे 10 मेंटर से सीखेंगे। बहुत बढ़िया केसेस हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज हैं, अनकॉमन मेडिसिन हैं, लेकिन वो इस तरह से वहां पे प्रेजेंट होने वाली हैं कि वो अनकॉमन उस तरह से रह नहीं जाएगी। आप उनको कॉमनली आपके क्लिनिक में यूज कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रोसेस है कि ये प्रोसेस क्या है, किसके थ्रू हमारे मेंटर जाते हैं और एक से एक रेयर रेमेडी को प्रेस्क्राइब करते हैं और पेशेंट को क्योर करते हैं। तो यही हम हमारा थीम भी है और यही हम सीखने वाले हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। और वहां पे आइए, आपको एक अच्छा सरप्राइज केस दिखाऊंगा कि जनरली हम लोग एलोपैथी के पास जाते हैं, लेकिन कोई MD साइकेट्रिस्ट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है और फिर क्या केस होती है, दैट इज अ बिग सरप्राइज। जो भी लोग आएंगे उनको वीडियो देखने को मिलेगा। सो ऑल आर वेलकम एंड आई एम वी ऑल मेंटर्स eagerly waiting for you. So let's meet at 4 October. डेफिनेटली सर। तो अभी वाइंड अप करते हैं आज की इस BC को। हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर का बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं सभी विनर्स को। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने केस को क्रैक किया। तो आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट BC में। गुड डे। Thank you. Good day, sir. सर।